So today we are going to start the first chapter of our computer science. The name of the chapter is number system. Now you may be wondering कि सर number system क्यों पढ़ा रहे हैं? ये क्या maths है? Let me be very clear to you. 50% or more than 50% actually of computer science is actually mathematics. Everything that you will learn in the classes that are going to come and the logic that you have to apply will be all based on mathematical problems, will be all based on mathematical calculations. So if you hate mathematics, you are going to suffer in computer science. So there is no running away from it. So that was the introduction of what the computer science is all about. Let me be very clear that what is number system is. Number system, the name of the chapter is number system. Now, first of all, in mathematics we had different types of number system. That we had rational numbers, we had irrational numbers, we have real numbers, we had imaginary numbers, and वगैरह वगैरह, whole numbers, natural numbers. In computers also we need different kind of number systems. Why? For example, the number system that we are used to, we are dealing with, that is called decimal number system. Why? Because this means decimal, means the number ranges from 0 to 9. जो भी हम लोग वर्ड बोलेंगे, जो भी हम लोग नंबर बोलेंगे, सब देखो 0 से 9 के बीच में ही होगा. For example, what is your roll number? Sir, my roll number is 37. 37 means it will lie between 0 and 9. Sir, what is your roll number? My number is 1596. 1596. हाँ, इसके अंदर रह रहा है. Decimal number system is the number system which ranges or which falls between the digits 0 to 9. Therefore, a decimal number system is represented by like this, a bracket and the base is 10. Sir, why base 10? ऐसा 10 क्यों लिखा आपने? Because how many digits are there? 0 से 9 के बीच में कितना सारा डिजिट हुआ? सर 10 डिजिट हुआ. देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हुआ. So therefore I am writing like this. This is the representation of a decimal number system. Bracket, now base 10. Okay? Now we have binary number system. This binary number system is from 0 to 1. Computer, you have learned from the basic in the beginning. मैंने class 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि computer 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता. 0 means off, 1 means on. Off on, off on, off on. This combination goes on and goes on, and computer understand this binary number system. था ना? So this binary number system is recognized by the computers. This decimal number system is recognized by humans. So what is the representation of the binary number system? This will be represented as like this. Base 2. Why sir base 2? क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही डिजिट है, 0 and 1. So the total number of digits in a number system will be represented as the base of the number system. That is 2. And the total number of digits is here 10. So therefore base to the power 10. So these are the two types. Now I have two more types. Next is called the octal number system. Octal, नाम से ही पता चल रहा है सर. Oct 8, octagon, है ना? Then in chemistry we have learned that octane. So octal means 8. कैसे 8 सर? 0 से लेकर 7 कितना तक होता है? 8 गो. So therefore this is represented as 8. We have 8 digits for this. 0 से. Now the last one is hexadecimal or just hex. Hexadecimal. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 0 to 15. यहां तो सब बढ़ गया, 10 से भी आगे चला गया, 0 से 15.
So therefore, the total number of digits or total number of characters that can be used to represent this is 16. 16 है. Therefore, it is represented as 0 to power 16. अब now you will ask, sir, maths में अलग अलग number system था because it has some use. हर जगह whole number was जैसे whole number started from 0, natural number started from 1, integers means negative, positive, real numbers means the decimal also, fractional part also. तो इसका क्या काम है? इतना अलग अलग तरह का number system आपने क्यों ले लिया? Each one has a benefit, each one has an application. The first one, this is human recognizable. We are speaking the use of this decimal number system. This decimal number system is understood by humans. So we have to use this kind of number system. Because if I say my roll number is 7, instead of 7, if I say my roll number is 111, will you be able to understand? No. Instead of telling 162, I will telling 101101101110. My roll number is this. Will you be understanding this? No. Why? Because we cannot understand this 101010. Anything in computer is this 10 and 01 like this. But we cannot understand this. हमको समझते हैं सिर्फ ये 0 से लेकर 9 तक के बीच में. That's why this decimal system is recognized by humans. Whatever we will understand, whatever we will see will be coded as decimals. Now then, what is the use of this binary system? This is used by computer calculations. This is used by computer processing. ये प्रोसेसिंग करने में काम में आएगा. हम लोग जो भी लिखते हैं, सपोज माई नेम इज ऑनिंदो, ANINDA, हमने तो अपना कैरेक्टर वाइज नाम लिख दिया. कंप्यूटर लेकिन कैरेक्टर नहीं समझेगा. What will the computer do? Computer will take one by one the characters and will change it into 0110. How to change it? We will learn it in the next chapters. But you need to know that anything and everything that we do, everything that we type will be converted into 10 and 01. That is used for the processing of the computer. है ना? So this is also required. Now then, why do we require this octal and hexadecimal? This octal number system is used for transmission purposes. We have to encode into octal bits. है ना? Transmission means suppose a data has to be transferred from one part of the computer to another part of the computer, or from one computer to another computer. We need to change this binary number system or this decimal number system into octal number system. Why? Because octal number systems are compact. They don't require much space as compared to this binary and decimal. Binary number 0101 तो बहुत बड़ा हो जाता है. इतना बड़ा नंबर सेंड करेंगे तो I will require much amount of storage spaces, or the transmission will be slow क्योंकि बहुत सारा digit सेंड करना पड़ेगा. इसके जगह I will reduce the size and I will change it into this octal. It will be used for transmission. The hexadecimal का यूज होता है. It is used for storage in our hard disk. है ना? तो स्टोरेज के काम में आता है. वी हैव टू स्टोर दैट डेटा. तो स्टोरेज के लिए हमको जितना कम से कम जगह चाहिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि ज्यादा बड़ा चीज को स्टोर करने में ज्यादा बड़ा जगह लगेगा. है ना? पहले क्या होता था कि जस्ट इमेजिन द सॉन्ग्स और द वीडियोस दैट वी यूज्ड टू सी. है ना? साइज जैसे मान लो 200 MB लगता था, बट द पिक्चर वाज नॉट सो क्लियर, द ऑडियो वाज नॉट सो क्लियर, और द ऑडियो वाज नॉट सो वाइब्रेंट. बट एज द टाइम आर पासिंग बाय, साइज उतना ही रह जा रहा है. 125 MB या 150 MB या 100 MB का ही वीडियो है, बट द वीडियो इज वेरी क्लियर और द ऑडियो इज वेरी क्लियर. कैसे? बिकॉज उस 125 MB में ही आई कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ डेटा. उसको कंप्रेस कर दिया जाता है. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. आई कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म बाय यूजिंग दिस हेक्साडेसिमल. सो दिस इज द यूज ऑफ द all the number systems. Now there are, before processing this each and every type, I want to tell you something, that is number system in general is basically of two types. One is positional number system and another one is non-positional number system. क्या है सर ये पोजिशनल और नॉन पोजिशनल का मतलब क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम मीन्स
that we can understand by the position of the digits that which number is greater and which number is smaller. For example, suppose I have been given 176 and the next number is 98. Okay, so I can, from seeing only, I can say that which number is larger and which number is smaller, because here 3 digits are there, here only 2, here 2 digits are there. So this one is larger and this one is smaller. Suppose if the digits are same, I have 176 and 165. There are 3 digits in both, but the first digit is same, the second is 7 and 6. The 7 is greater than the 6, therefore the 7 is larger and 6 is smaller. So depending on the position of the digits, I can say, or the depending on the position of the characters, I can determine कि कौन सा number बड़ा है, कौन सा number छोटा है. So these are all types of positional number system. कि देख के पता चल जाएगा. This can you can already understand. Human understand decimal example. I am giving you an example of binary. Suppose the binary एक ऐसा दिया हुआ है 10011 और एक दिया हुआ 111 only. बता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. सपोज ये तो जाने से देख लेगा कि सर ये ज्यादा डिजिट है तो ये बड़ा है, ये छोटा डिजिट है ये छोटा है. Correct. So positional number system can be determined by seeing the digits or by seeing the characters. That कि पोजीशन देख के बताएंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है. बट व्हाट इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम? रोमन नंबर्स. सपोज हमको 8 लिखना है, ये रोमन नंबर्स हमको 8 कैसे लिखेंगे? लाइक दिस इज 8. हमको 10 लिखना है, यहां बता पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ना सर, रोमन नंबर में m लिखा है तो m का मतलब अलग है ना, d का मतलब अलग है, l का मतलब अलग है. क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सर कोई नहीं बता सकता. तो आई हैव टू नो ईच एंड एवरी कैरेक्टर देन, है ना. सो दैट इज अ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. पोजिशन देख के या नंबर ऑफ डिजिट्स देख के यू कैन नेवर डिटरमाइन कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. बट इन केस ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम, नंबर देख के या नंबर ऑफ डिजिट्स देख के या उसका पोजिशन देख के यू कैन से that which number is larger and which number is smaller. So these are all examples of positional number system, while Roman number is an example of non-positional number system. Correct? So this is all about the number system. Now I have to know that how to convert the decimal to binary. हमने अपना roll number दिया 165. This is my roll number. But it is the work of computer to change it into binary if it is used for calculation or processing. It has to change for octal if it is used for transmission. It has to be changed to hexadecimal if it is used for storage. ये कैसे करना है? Let us see. Conversion of number systems. The first one, I have to convert my decimal number to a binary number. How to convert this decimal to binary? For this, I have to divide it by 2. Okay, कैसे? Suppose, take an example. Suppose I am taking an example as, sir, 17. 17 has to be converted to binary. कैसे? Dividing into binary, I have to divide it by 2. How? 17. Draw 2 parallel lines like this. ठीक है? Now, divide it by 2. 17 को 2 से डिवाइड करने में कितना मिलेगा? I will get 8 as the quotient and 1 as the remainder. सही है? Now again 2 से फिर से डिवाइड करो. I will get 4 as the quotient and 0 as the remainder. अब 4 को 2 से डिवाइड करो. I will get 2 as the quotient and 0 as the remainder. फिर 2 को डिवाइड करो. I will get 1 as the quotient and 0 as the remainder. बस हो गया. अब तो 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, because 1 is lesser than 2. So I am getting this. अब जब मिल गया, so you will take from down to up, नीचे से ऊपर बढ़ो like this. What you are getting? You are getting 1 0 0 0 1. This is your binary number. Means 17 can be written as 1 0 0 0 1. This is how you can convert decimal to binary. Let me give you one more example. Suppose I am taking a larger number, suppose 58. This 58 can be written as base 10 because decimal is represented as base 10. So this 58 will be also written as base 10. अब इसको कैसे नोट करेंगे? Same process, I have to divide it by 2. कैसे लिखेंगे?
Come on, if I divide by 2, what I will get? I will get 29 as the quotient and 0 as the remainder. इधर quotient लिखना है, इधर remainder लिखना है. इधर लिखना है quotient और इधर लिखना है remainder. Okay, और 2 से divide करते जाना. Why 2? Because I am converting to binary. Binary has base 2. इसे divide भी होगा 2 से. Okay. So 58 to 29 अब क्या करना है? 2 से again I am getting 14 as the quotient and 1 as the remainder. 14 to the 28, so 1 is the remainder. Now again I will divide by 2. I will be getting 7 as the quotient and 0 as the remainder. Then I will again divide by 2. I will get 3 as the quotient and 1 as the remainder. Again I will divide by 2. I will get 1 as the quotient and 1 as the remainder. बस हो गया. Because 1 तो 2 से जाएगा नहीं. So this is my last digit. So again what I told, I have to read from the below. नीचे से read करना शुरू करेंगे like this. So what I am getting? I am getting my number as 1111010 base 2. This is the binary of 58. समझ में आया? How the things are being converted? To convert my decimal to binary, I have to divide by 2 and have to write all the remainders from bottom to the top. From bottom to नीचे से ऊपर जाना. ठीक? The same process can be applied for octal conversion also. How this has to be done? This has to be done by dividing by 8. Same process. Let me give you an example. Suppose 25 base 10, and here I will also write again this 58 base 10. सही है? Now convert करो. I will divide by 8. क्या मिलेगा? I will get remainder as 3 because 8 3s are 24. तो remainder क्या बच गया? 1. प्लस अब 3 जाएगा ना, ये तो एक बार खत्म हो गया. So I am getting from bottom to top means I am getting 31. समझ में आया? देखो ये कितना बड़ा था, ये 10001 है ना, और ये कितना 31 to the कितना छोटा, ये 17 था, ये उससे बड़ा 25. अब 58 देखो, 58 was 111010, हम तो इसको और बड़ा कर देते हैं. आई एम टेकिंग इट एज 158. अब बताओ तो और बड़ा हो जाता है इसमें. इन केस ऑफ बाइनरी ऑक्टल में देखो क्या होगा. So on dividing 158 by 8, what I am getting? I will be getting suppose 78, 76, 87, it will be 17. है ना? No, not 17. It will be 19. 19 8 is 152. So I am getting 19 8 is 152. So remainder कितना बच गया? Remainder is 6. 19 into 8 is 152. So if I am dividing 158 by 8, कम और ये कर लो रफ में. 158 को 8 से डिवाइड करो. What you are getting? You are getting 1, 8, 78, 9s are 72, remainder is 6. So I am getting 19 as the quotient and 6 as the remainder. तो लिख दिया 19 as quotient and 6 as the remainder. अब 19 को फिर से 8 से डिवाइड करो. I will getting 2 as the quotient and 3 as the remainder. बस हो गया. Because 2 cannot be divided by 8. ये खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया. So from bottom to top, what I am getting from this 2 to top? I am getting 2, 3, 6 base 8. ओके ना, ये छोटा है ना इसके तुलना में. So that's why I am using this for transmission purposes. Octal number system. तो बोले सर हेक्साडेसिमल तो और भी छोटा हो जाएगा इसका मतलब. लेट्स सी.
decimal to hexadecimal. Here we have to divide by 16. Why 16? Because the base is 16, है ना. इसका base 2 था, therefore I had divided by 2. इसका base 8 था, that's why I had divided by 8. इसका base 16 है, that's why I will be dividing by 16. Clear है? Now example. This hexadecimal is required for basically for larger number. जो बहुत बड़ा नंबर है ना, उसके लिए हम लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं. So 158 यहाँ शुरू करते हैं. So my number, sorry, this will be 158 base 10. इसको चेंज करना है to the base 16. How? By dividing by 16. करो. सर एक स्टेप में खत्म हो गया. आई एम गेटिंग माई आंसर एज 914 बेस 16. बोले सर ये कैसा आंसर है? कोई इसको 914 भी बोल सकता है और कोई इसको बोल सकता है 914. कौन सा सही है? ये सही है या ये सही है? जब नीचे से ऊपर हमको जाना है लाइक दिस. ओके, 9 इंटू 16 इज 144. तो 144 से रिमाइंडर बच गया 14 एंड द क्वोशंट मिल गया 9. 2 डिजिट में मेरा काम खत्म हो गया. बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पे व्हेन आई विल राइट 914, है ना, कोई इसको अलग अलग सोच सकता है. कोई समवन कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स एंड समवन विल से इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 9 एंड 14. अब कैसे करेंगे सर? बीच में कॉमा दे देंगे, ये बॉक्स बना देंगे, ये लाइन दे देंगे टू टेल देयर 2 डिजिट्स ओनली? ना, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट. कैसे? हाउ कैन अंडरस्टैंड कि ये 2 डिजिट का है ना 3 डिजिट का है? सो दैट्स व्हाई इन हेक्साडेसिमल, आई एम रिपीटिंग, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का रेंज कहां से है? 0 से लेके 15 तक. 0 से 15. तो 0 से लेके 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली 1 डिजिट. 0 से लेके 9 सिर्फ 8 डिजिट है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. प्रॉब्लम है 10 से लेके 15 तक. व्हाई? बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स. 10 है, हम 10 लिख रहे हैं सिंगल कैरेक्टर या 10 लिख रहे हैं 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स. इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा. जैसे यहां पे हम 14 लिखे ना 14 लिखे, ये कौन बोलेगा? दैट्स व्हाई आई विल टेक कोड्स ऑफ 10. 10 नहीं लिखे, आई विल राइट द कोड एज A. 11 को लिखेंगे एज B, 12 को लिखेंगे C, 13 को लिखेंगे D, इसको लिखेंगे E और 15 को लिखेंगे एज F. मींस A to F इज द कोड ऑफ हेक्साडेसिमल ओनली. ये इधर नहीं था बिकॉज यहां 2 डिजिट का लफड़ा नहीं था. यहां सिर्फ 2 ही डिजिट, यहां सिर्फ था 0 और 1 सिंगल डिजिट्स. यहां था 0 to 7 सिंगल डिजिट्स. लेकिन यहां से 0 to 15, 0 से 9 तक देयर आर सिंगल डिजिट्स. लेकिन 10 से लेकिन 15 तक देयर आर 2 डिजिट्स. To recover this problem, we will take the numbers of 10, 11, 12, 13, 14 and 15 as A, B, C, D and A, B, C, D, E and F. So therefore, तो ये दोनों ही गलत प्रोसेस है. ये दोनों में से एक भी नहीं लिखेंगे. What I will write? I will write 9 and 14. 9 तो 9 जैसे लिख लेंगे, जो 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now 14 will be written as E. So my answer is 9E base 16. Only 2 digits are there. 2 characters are there, 9 and E. 9 का मतलब तो 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और E का मतलब you should know, E का मतलब था 14. I will not write like this. तो कोई कंफ्यूज कर जाएगा कि सर 14 लिखें या 14 लिखें. 2 डिजिट है 9 और 14, 2 डिजिट है या 9 1 4 3 डिजिट है. ऐसा लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 डिजिट है, 9 है और E है. करेक्ट. सपोज ये साल कौन सा है? बहुत खराब साल है 2020 तक. जितना सारा प्रॉब्लम 2020 में हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया में आग लग जा रहा है, तो कभी कोरोना हो जा रहा है, तो इतने सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज मर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. सपोज आई हैव टू चेंज दिस 2020 इनटू हेक्साडेसिमल. कैसे करेंगे? इसको चेंज करना है. 2020 बेस 10 टू बेस 16. कैसे करें? देखो, सिक्सटीन से डिवाइड करना. करो, लेट अस डिवाइड दिस.
So I am getting 126 as the quotient and 4 as the remainder. Okay, now 126 को फिर से 16 से डिवाइड करो, है ना. 16 8 za is 128, 16 8 za is 128, 16 7 za is 112. So 16 7 za is 112. तो कितना रिमाइंडर बच गया? 14. अगेन सर 14 ही आया, पता नहीं आया. आई एम हेल्पलेस. 14 ही आया. व्हाट आई कैन डू. सो क्या मिला? आई एम गेटिंग 7 14 एंड 4. तो 7 को तो 7 लिख देंगे, 14 के लिए क्या लिखेंगे? E. 4 के लिए 4 ही लिखेंगे. So 7E4 base 16. This is my hexadecimal value of 2020. So this is how I can convert my decimal number system into the other three. Decimal से दूसरा में आया. Now अब तो उल्टा होगा. ये क्या हो रहा है? ये होगा जब यूजर इनपुट देगा और कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा फॉर देयर कैलकुलेशन. लेकिन जब आउटपुट दिखेगा, व्हेन वी विल गेट द आउटपुट, तो क्या होगा? दिस नंबर सिस्टम शुड बी कन्वर्टेड टू डेसिमल. ये उल्टा भी करना है. लेट्स सी हाउ दिस इज डन. टू डेसिमल नंबर सिस्टम, हाउ टू डू दिस? बाइनरी मीन्स द फॉर्म दैट इज रेड बाय कंप्यूटर और डेसिमल मीन्स दैट इज रेड बाय अस. मीन्स आई हैव टू कन्वर्ट base 2 say base 10. Okay, so 3 parts I have divided screen in 3 parts. So how to change this binary to decimal? Suppose तुमको कोई क्वेश्चन दिया है सर 101101. दिस इज माई बाइनरी नंबर. इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? सर बोला कि माई रोल नंबर इज दिस वन. कोई आके बोला माई रोल नंबर इज 101101. क्या है भाई 11101101? खोजते फिरेंगे, क्या है ये? आई नीड टू कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. आई नीड टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म. कैसे? वहां हम किए थे वी विल डिवाइडिंग बाई 2. यहां का क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई with 2 to the power n. यहां पे एक ट्रिक है सर, 2 to the power n. क्यों? द नंबर ऑफ डिजिट जैसे इंक्रीज होगा n का पावर भी इंक्रीज होगा. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, फिर एक एक करके 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे एक एक करके बढ़ते रहेंगे. कैसे? लेट अस सी. सो व्हाट इज माय लास्ट डिजिट? ये भी पीछे शुरू करना, आगे से नहीं, फ्रॉम द लास्ट. व्हाट इज माय लास्ट डिजिट? 1. तो दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड, दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 to the power 0. फिर क्या आया? 0. This 0 will be multiplied with 2 to the power 1. एक एक करके बढ़ रहा है 2 का पावर. फिर आया 1. This will multiplied 1 into 2 to the power 2. फिर से आया 1. 1 into 2 to the power 3. फिर आया 0. 0 into 2 to the power 4. फिर आया 1. Because there are 6 digits. देखो 6 digits, तो ये आया 1. 1 into 2 to the power 5. So there are 6 number. कितना हो रहा है? ऐड करो तो कितना हो रहा है? देखो तो 2 to the power 0 is 1. 1 into 1 is 1. Anything into 0 is 0. देखने की जरूरत नहीं है. 2 to the power 2 is 4. तो 1 into 4 is 4. 2 to the power 3 is 8. 0 देंगे 0. ये हो जाएगा तुम्हारा 32. सही है? Now add. सबको ऐड करो. कितना आ रहा है? 32 plus 8 40 45. So this is my base 10. 45 मीन्स ये नंबर का मतलब होता है 45 मीन्स माई रोल नंबर इज 45. समझ में आया? इंस्टेड ऑफ टेलिंग दिस 101101 आई एम ट्राइंग टू से दैट माई रोल नंबर इज 45. दिस इज हाउ दैट बाइनरी डिजिट्स और द कंप्यूटर कोडेड डिजिट्स आर कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. ऐसे, ठीक है? लेट मी गिव वन मोर एग्जाम्पल. ट्रिपल 1 0 0. ये हाँ 1 1 0 0. चलो, या फिर लास्ट में जाकर एक सिंगल 1 1 0. क्या होगा इसका आंसर? ओके, लेट अस सी क्या होगा. एज आई टोल्ड, ये 0, तो आई विल मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 to the power 0. फिर से 0 0 इंटू 2 to the power 1.
फिर से 0 0 इंटू 2 टू द पावर 2, एक एक करके पावर बढ़ते रहे 2 का, बिकॉज आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर n। फिर आया 1 1 इंटू 2 टू द पावर 3, फिर आया 1 1 इंटू 2 टू द पावर 4, फिर से आया 1 1 इंटू 2 टू द पावर 5। चलिए इसका मान लो एक और आगे 1 रहता, सपोज एक और 1 रहता, तो क्या करते, एक बार फिर से 1 1 इंटू 2 टू द पावर 6, देयर आर 7 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। क्या होगा, चलो कैलकुलेट करो, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 8, दिस विल बी 16, दिस विल बी 32, दिस विल बी 64। सही है, सो ऐड करो कितना आएगा, 64 plus 16 is 80, 32 plus 40, I am getting as 120, base 10. So this is how I can convert my binary to decimal. Binary होता है 0110, means that is coded for the computer, and that I have converted into the human readable form like this. ठीक है, so this is the first conversion. The similar conversion can be done for octal to decimal. Octal to decimal, and for here we have to do base 8 say base 10, therefore we have to multiply with 8 to the power n, 8 to the, यहां कहते 2 to the power n, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 8 to the power n। वही, चलो let's take some examples. Suppose I have 753 base 8, इसको कन्वर्ट करना है, कैसे, तो लास्ट देयर इज 3, सो आई विल टेक दिस 3 एंड मल्टीप्लाई इट विथ 8 टू द पावर 0, देन आई हैव 5, to the power 0 is 1, because anything to the power 0 is 1, so 3 into 1 is 3, this will be 40, this will be 64 into 7 8, carry over 2 7 42 448। चलो ऐड करो, what I am getting, I am getting 488 plus 3 491, so 753 base 8 can be written as 491 base 10। ठीक है, दिस कन्वर्शन हैज टेकन प्लेस, मींस दिस वाज द यूज्ड फॉर कंप्यूटर ट्रांसमिशन, दिस वाज यूज्ड फॉर ह्यूमन कैलकुलेशन। ऐसा नहीं, दिस इज हाउ माय थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड। एक और एग्जांपल देते हैं, अच्छा सपोज तुमको कोई दिया 58 बेस 8, बोले इसको चेंज करो, ये क्या क्वेश्चन सही है? नहीं सर, ये क्वेश्चन ही गलत है। व्हाई? बिकॉज बेस 8 मतलब ऑक्टल, इसका रेंज कहां से कहां तक था? द रेंज वाज फ्रॉम 0 to 7, 7 वाज द मैक्सिमम डिजिट दैट एन ऑक्टल कैन टेक। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? 8, गलत है ये, ठीक है। सो दिस कैन नॉट हैपन, सो दिस नंबर इज रॉन्ग। तो हम 56 आई एम टेकिंग दिस एज 56। हाँ ये सही है सर, रेंज सही है, सो कन्वर्ट करो। आया समझ में? So this is how my conversion takes place from octal to decimal. Now I have to move on to what to say. I will move on to this hexadecimal to decimal. Means I have to move from base 16 to base 10, and for this I have to multiply with
16 to the power n, 16 to the power n, यहाँ था 2 to the power n, यहाँ 8 to the power n, यहाँ है 16 to the power n. चलो let us see. है ना 7e base 16. e का मतलब क्या, व्हाट वाज e, पहले ये लिख लेते हैं. a means 10, b means 11, c means 12, d means 13, e means 14 and f means 15. Okay, so if I have to multiply e means I have to multiply 14 into 16 to the power 0. Correct. फिर 7 I have to multiply 7 into 16 to the power 1. सही है. What I am getting? I am getting here 14 and here I am getting as 112. 112. On adding these two I will be getting 126 base. सही है. This is how I can calculate my convert my hexadecimal to decimal. देखो यहीं से शुरू किए थे. In the previous topic I told you how to convert 126 into octal. Sorry, hexadecimal. Now I am converting the 7 hexadecimal to decimal. उल्टा वही आ गया घूम के. Means my answer was correct. This is you can cross check also, check भी कर सकते हो. So this is the process by which we can convert my binary to decimal, octal to decimal and hexadecimal to decimal. ये binary है, that's why we have to multiply with 2 to the power n. ये octal था, that's why we multiplied with 8 to the power n. और ये hexadecimal था, that's why we multiplied with 16 to the power n. Correct है. अब now we have to convert in between octal to hexadecimal and hexadecimal to octal. So now we are going to convert octal to hexadecimal or hexadecimal to octal, but the direct conversion is not allowed. You cannot directly convert an octal to hexadecimal or an hexadecimal to octal. Then rather what then we have to do? We have to convert binary to octal or octal to binary first. पहले binary में convert करो, then from binary you can convert to any other process. Because why binary sir? Binary को बीच में क्यों ला रहे हैं? Because binary is the processing or the calculation part. Binary में सारा calculation होता है. Calculation कभी octal या hexadecimal में नहीं होता. So if you have to change your octal, suppose stored किया हुआ है कहीं पे direct hard disk में store है in the form of hexadecimal, उसको तुमको ट्रांसमिट करना है, ऑक्टल में चेंज करना है. सो यू कैन नॉट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. बीच में क्या लाना पड़ेगा? बीच में कैलकुलेशन पार्ट को लाना पड़ेगा. दैट इज यू हैव टू चेंज इट इनटू बाइनरी फर्स्ट, तब जाके यू कैन कन्वर्ट इनटू एनी अदर पार्ट. ओके, कैसे? मींस यू नीड टू चेंज इट फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी. ठीक है. फॉर चेंजिंग ऑक्टल टू बाइनरी देर इज अ सिंगल रूल. व्हाट इज अ सिंगल रूल? चेंज ईच डिजिट, चेंज ईच डिजिट ऑफ बाइनरी टू, सॉरी नॉट बाइनरी, ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी ऑफ ग्रुप 3. सर ये ग्रुप 3 का मतलब क्या हो गया? लेट मी एक्सप्लेन. सपोज माय क्वेश्चन इज गिवन 741 base 8. I have to convert this into binary. कैसे करेंगे? This 7, what I told, change each digit. एक डिजिट को पकड़ के चेंज करो. Means I have to change this 7, I have to change this 4, I have to change this 1. तो 7 को कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड बाई 2. तो 7 के लिए हमको मिल रहा है 1 1 1. ओके. 4 को चेंज करो, I will get 1 0. चेक करके देख सकते हो. 1 के लिए मिलेगा 1, 1 के लिए 1 ही होता है. So I am getting 1 1 1 1 0 and 1. These are my binaries of each digit. But हमने क्या बोला था? Binary of group 3. 3 का ग्रुप चाहिए. तो यहां तो हमको ऑलरेडी 3 का ग्रुप मिल ही गया. There are 3 digits. देखो ये 3 का ग्रुप मिल गया. 1 2 3. यहाँ पे कितना सारा ग्रुप मिला? सिर्फ 2 1 0, सिर्फ 2 ही डिजिट मिला.
1 डिजिट इज मिसिंग, तो क्या करेंगे, इसके पीछे एक जीरो लगा देंगे ना सर, पीछे जीरो लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन सामने जीरो लगाने से कोई मीनिंग चेंज नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए आई विल प्लेस अ जीरो इन फ्रंट ऑफ इट। हो गया, ये 3 का ग्रुप बन गया। यहां सिर्फ 1 है, आई हैव टू चेंज इनटू ग्रुप ऑफ 3, तो क्या करेंगे, इसके सामने 2 जीरो लगा देंगे, ये भी 3 का ग्रुप बन गया। सो देखो अगर तीनों को एक साथ कंबाइन करें, इन तीनों को अगर एक साथ कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, आई विल गेट 1 1 1 0 1 0 0 0 1 बेस 2 हो गया। मीन्स आई हैव कन्वर्टेड माई ऑक्टल इनटू डेसिमल सक्सेसफुली। आए बात समझ में, हाउ कैन आई कन्वर्ट, टू चेंज ऑक्टल इनटू बाइनरी आई हैव टू चेंज ईच डिजिट ऑफ द ऑक्टल इनटू बाइनरी ऑफ ग्रुप 3। उसी प्रकार द सेम वे if I have to change hexadecimal into binary, तो क्या करेंगे, there was the same rule, change each digit of hexadecimal into बाइनरी ऑफ ग्रुप 4 के ग्रुप में चेंज करना है। ओके, सो वी हैड टेकन एन एग्जांपल ना 7e बेस 16, तो एक एक नंबर को चेंज करना है। सो आई एम गेटिंग 2 नंबर्स हियर, आई एम गेटिंग 7 एंड e। 7 मींस 7 को करो, व्हाट आई गॉट 1 1 1, 7 को करने से मिला 1 1 1। E का मतलब क्या था 14, E is 14, तो 14 को करो, व्हाट विल गेट 1 1 1 0। This is for E or 14। Now I have to change into groups of 4। सर इसका ऑलरेडी 4 है तो इसके लिए हेडेक नहीं है। देखो 1 1 1 0, इसका ऑलरेडी 4 है, आई डोंट हैव टू टेक अ हेडेक फॉर दिस। प्रॉब्लम इसके साथ देयर इज ओनली 3 डिजिट्स, पीछे ऐड करने से वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो हम आगे एक जीरो ऐड कर देंगे, इसका भी 4 ग्रुप हो गया। सो इफ आई कंबाइन दीज टू क्या मिलेगा, आई एम गेटिंग 0 1 1 1 1 1 1 0 बेस 2 हो गया। अब बहुतों के मन में यह सवाल आता होगा कि सर यहां बेस 3 क्यों किए, यहां बेस 4 क्यों किए, क्यों सर 3 के अलावा ये 3 ही इंपॉर्टेंट क्यों था फॉर बाइनरी, ये 4 ही इंपॉर्टेंट क्यों था फॉर हेक्साडेसिमल, बिकॉज ऑक्टल हैज बेस 8 and this base 8 can be converted to as 2 to the power 3। 2 to the power 3 means 8, therefore इसका ग्रुप भी होना चाहिए 3 3 का। हेक्साडेसिमल means 16 which can be written as 2 to the power 4, therefore इसका बेस भी होना चाहिए, इसका ग्रुप भी होना चाहिए 4। So this is how I can convert my octal to binary and from hexadecimal to binary। अब सवाल आता है सर ऑक्टल टू बाइनरी कर दिया, लेकिन ऑक्टल टू आप बोलते हो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल चेंज करके बताएंगे, कहां चेंज किया ऑक्टल, या तो ऑक्टल टू बाइनरी रह के हो गया। सही है, इसके लिए आई हैव टू स्टडी फर्स्ट हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके, सो आई हैव टू कन्वर्ट, इसका उल्टा करना है, बाइनरी टू ऑक्टल निकालना। टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल आई हैव टू
क्या लिखे हैं? ग्रुप द बिट्स। समझ सब, ये बिट क्या है? बिट मीन्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज 0 एंड 1 का मतलब होता है बिट। 0 या 1, 0 या 1 सिर्फ कंप्यूटर में ऑफ या ऑन होता है। सो 0 एंड 1 कैन बी टर्म्ड एज बिट, BIT, बिट। सो ग्रुप द बिट्स इन पैक्स ऑफ 3। ऑक्टल है इसलिए 2 to the power 3, दैट्स व्हाई आई हैव टू ग्रुप द बिट्स। जो 0 1 1 0 1 0 1 0 जो दिया रहेगा, इसका ग्रुप करना है। कितना का? पैक्स ऑफ 3, मतलब 3 का पैक बनाना है। फ्रॉम एंड, लास्ट से, पीछे से 3 का पैक बनाते जाना है। एंड चेंज ईच पैक टू इट्स रेस्पेक्टिव डेसिमल नंबर, उसके रेस्पेक्टिव डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तुमको जो एक क्वेश्चन देते हैं, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस: 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 बेस 2। इसको हमको ऑक्टल बेस 8 में चेंज करना। कैसे करेंगे बताओ? ठीक है, टू कन्वर्ट दिस आई हैव टू चेंज इट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3। तो फ्रॉम द एंड, तो पीछे से करो। सो 3 सर ये मिला पहला ग्रुप, देखो 1 0 पहला ग्रुप। फिर यहां से मिला 0 1 0 1 मतलब 1 1 0 थर्ड ग्रुप। फिर मिला 1 1 0 थर्ड ग्रुप। फिर देखो यहां सर ये तो फाका रह गया। नहीं है तो अपने मन से सामने तो 0 ऐड कर दो, क्योंकि सामने 0 ऐड करने से कोई चेंज नहीं होता। सो हाउ मेनी ग्रुप्स आई एम गेटिंग 4 ग्रुप्स। 0 0 1 दिस इज द ग्रुप नंबर 1। फिर आ रहा है 1 1 0 ग्रुप नंबर 2। फिर आ रहा है 1 1 0 ग्रुप नंबर 3 एंड 1 0 0 ग्रुप नंबर 4। मिला 4 ग्रुप। नाउ अब चेंज ईच पैक, 4 पैक मिला। चेंज ईच पैक टू इट्स रेस्पेक्टिव डेसिमल नंबर सिस्टम। इस 0 1 1 का डेसिमल निकालो। कैसे? 0 0 1 1 into 2 to the power 0, 0 into 2 to the power 1, 0 into 2 to the power 2। ऐड करके देखो ये 1 आएगा, बाकी सब 0। माई आंसर विल बी 1। तो इसका पैक हो गया 1। सेम वे इसको चेंज करो, इसको मिलेगा एज 6, इसको मिलेगा एज 6, इसको मिलेगा एज 4। I don't know, made a mistake here. यहाँ 1 अब हो गया, तो 4 हो गया 1 0। ठीक है, तो हमको क्या मिला? आई एम गेटिंग 1 6 6 4। सो देयरफॉर माय ऑक्टल विल बी 1 6 6 4 बेस 8। करेक्ट। So this is how I have converted my binary to octal। समझ में आया? तो उसी प्रकार you have to change hexadecimal to octal। तो क्या करेंगे? सॉरी, binary to hexadecimal। तो क्या करेंगे? Very easy, the same process। We will group the bits in packs of 4, है ना, from end, and change each pack to its रेस्पेक्टिव डेसिमल। ओके, सपोज हमको इसी को चेंज करना है, सेम नंबर को हमको हेक्साडेसिमल में चेंज करना। हाउ कैन आई डू? आई वाज गिवन 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 बेस, ये बेस 2, हमको बेस 16 में चेंज करना। हाउ? आई विल कन्वर्ट इनटू पैक्स ऑफ 4 फ्रॉम द लास्ट। तो पहला पैक क्या मिला? दिस वन इज द पहला पैक 0 1 1 0। फिर लास्ट सेकंड पैक क्या मिल रहा दिया? ठीक है, थर्ड पैक क्या मिला? ओनली 1 1, 2 मिसिंग है, तो सामने 2 0 पुट कर दो। सो हाउ मेनी पैक्स यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 3 पैक्स। क्या क्या मिल रहा है? 0 0 1 1 पैक नंबर 1, 1 0 1 1 पैक नंबर 2, 0 1 0 0 पैक नंबर 3। ठीक है, कन्वर्ट कीजिए। This
will be converted, देखो ये कन्वर्ट करो, you will get 3, ये कन्वर्ट करो, you will get as 11, ये कन्वर्ट करो, you will get as 4. So I am getting 3, 11, 4. 3 को तो 3 लिख सकते हैं, 4 को 4 लिख सकते हैं, पर 11 को 11 नहीं लिख सकते. You have to write B because I told you ना कि A, B, C, D, E, F लिखना है in case of hexadecimal. So what will be my answer? My answer will be 3B 4 base 16. Okay, so here I have converted my binary to hexadecimal number. 3, 11, 4 3B 4 base 16 है ना. Now, so what was my target? I had to convert octal to hexadecimal direct. कैसे? Change my octal to hex or hex to octal. Suppose I have been given a question 751 base 8 and I have to change it into base 16. कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली तो बोले नॉट पॉसिबल. आई हैव टू चेंज इनटू बाइनरी फर्स्ट. तो 7 का आई विल गेट 1 1 1, 5 का आई विल गेट 1 0 1, 1 का आई विल गेट 1. सो आई विल पुट 2 zeros in front of it to make it packs of 3. So what I am getting? I am getting 1 1 1 1 0 1 0 0 1 base 2. हो गया. Now this binary has to convert it to base 16. कैसे? I have to take packs of 4 from the last. तो पहला पैक क्या मिला? देखो ये this one. फिर क्या पैक मिला? this one. यहाँ 1 बाकी रह गया, तो इसके आगे हम 3 0 ऐड कर देंगे. So how what I am getting? I am getting 0 0 0 1 1 1 1 0 and 1 0 0 1. I am getting 3 packs. सही है. Now 0 0 1 0 0 0 1 को चेंज करो, I will get 1. 1 1 1 0 को चेंज करो, I will get here as 14. 1 0 0 1 को चेंज करो, I will get here as 9. Okay, so I'm getting 149. That is 1 को तो 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 14 को लिखेंगे as E और 9 को लिखेंगे as 9. So this is my base 60. So therefore I have successfully converted 751 base 8 into 1E9 base 16. है ना. मीन अगर 8 से 16 कन्वर्ट करने दिया जाए तो फर्स्ट तुमको बाइनरी में लेना पड़ेगा, देन या उल्टा करके देखते हैं 16 टू कैसे ऑक्टल में चेंज करेंगे. Okay, this is my question. 7B2 को हमको base 8 में चेंज करना. How I can do this? तो सबसे पहले I will convert this 7B2 into binary. This 7 can be written as 1 1 1. This B का मतलब क्या होता है? 11. This 11 can be written as 1 0 1 1. 2 can be written as 1 0. हो गया. But दिस इज 16, सो 4 के ग्रुप में चेंज करना था. दिस इज ऑफ ग्रुप 4. ये सही है, ये प्रॉब्लम कर दिया. सो यहाँ एक सामने एक 0 ऐड कर देंगे, हाँ सर हो गया. इसके सामने 2 0 ऐड कर देंगे, हाँ सर हो गया. सो आई एम गेटिंग ऑल एज द ग्रुप्स ऑफ 4. अब सबको एक साथ कंबाइन करो. व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0. सही है. दिस इज माई बेस 2. अब इस बेस 2 को बेस 8 में कन्वर्ट करो. हाउ? बाय टेकिंग इनटू पैक्स ऑफ 3. ये तीनों एक पैक बन गया, ये तीनों का एक पैक बन गया, ये तीनों का पैक बन गया, ये तीनों का. सर माय गुड लक, सारा का सारा पैक में आ रहा है. सो व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 0 1 1 एज फर्स्ट पैक, 1 1 0 एज सेकंड पैक, फिर से 1 1 0 एज थर्ड पैक एंड 0 1 0 इज द फोर्थ पैक. तो 0 1 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 1 1 इज 3.
110 is 6. 110 is again 6 and 010 is 2. ओके, सो देयरफॉर अगर इन तीनों को ऐसा मिला दिया तो क्या मिलेगा? आई एम गेटिंग 3 6 6 2 base 8. So I have converted my 7b2 as 3 6 6 2 base 8. Now अब तुम लोग के मन में ये प्रश्न आया होगा कि सर ने कैसे डायरेक्टली ये लिख दिया, कैसे लिख दिए सर आप ये फिर सर ये सब 40 आप ये जो लिख रहे हैं कि 7 को 011 डायरेक्टली 111 लिख दिए, बी को डायरेक्टली आपने 11 को डायरेक्टली आप 1011 कैसे लिख दिए सर? करना पड़ेगा ना हम लोग को बार बार। 11 को कैसे चेंज करते हैं? 11 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? सो देयर इज अ वेरी स्मॉल ट्रिक फॉर दैट, वेरी स्मॉल ट्रिक फॉर दैट। क्या ट्रिक है सर? सर ट्रिक कुछ इस प्रकार है। व्हाट क्या करना है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 to 15, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कहां होता है? मैक्सिमम होता है हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल इज द लार्जेस्ट रेंज 0 से 15, सो आई विल टेक द मैक्सिमम रेंज ऑफ 0 to 15। तो क्या लिखेंगे सर लाइन से? यहां लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है? एक्चुअली आई नीड अ फुल पेज, वो करने से अच्छा होता है। वेट मिनट, आई विल एक्सप्लेन द फुल पेज में करने से अच्छा होता है। इसका आंसर है नीचे लिख देता है और इसको यहां एक्सप्लेन। सो व्हाट आई टोल्ड, आई नीड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 हो गया हमारा काम। अब तुमको क्या करना है? यहां पे तुमको 4 डॉट्स देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 डॉट। तुमको ये 4 डॉट में 0101 पुट करना है। ठीक है? कैसे? सबसे पहले हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 16 डिजिट। 16 का आधा करो, 16 आधा करो 8, तो पहले 8 0 लिखो, लाइन से 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सर 8 0 लिख दिए। अब 8 को 1 लिखो, 1 1 1 1 1 1 1 1। हाँ सर लिख दिए। तो 16 का आधा 8 हुआ। अब 8 का आधा करो, 8 का आधा 4, तो 4 0 लिखो, 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1। फिर से 4 0 4 1। अब 4 का आधा करो, 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। अब 2 का हाफ करो, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। सिमिलरली फॉर सब के 1 0 1 1 है ना? अब देखो तो क्या मिल रहा है सर? सबसे पहले 0, इसका कुछ नहीं, यहां हमको 0 मिला, यहां हमको 1 मिला, यहां हमको 10 मिला, यहां 11 मिला, यहां 100 मिला, यहाँ पे 101 मिला, यहाँ पे 110 मिला, यहाँ पे 111 मिला, यहाँ पे 100 मिला, यहाँ पे 1001 मिला, यहाँ पे 1010 मिला, यहाँ पे 1011, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1101, यहाँ पे 1110 और यहाँ पे 1111, है ना? सो डायरेक्टली ये अगर टेबल अगर इसको याद रहे तो दिस कन्वर्शन और इजी बन जाएगा और फास्ट हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग दिस। ये ट्रिक हमको याद है, हमको ये बार बार यूज कर रहे याद हो गया है। तुम भी अगर ये ट्रिक लिख सकते हो तो ये सब और आसान हो जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्शन। तो ऐसे हम ये कन्वर्ट कर रहे थे डायरेक्टली, समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट ऑल द डिजिट्स इन बिटवीन। एक और कन्वर्शन है, दैट दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। एक और कन्वर्शन बच गया सर, वो क्या है? आई हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर मतलब सपोज तुमको कोई नंबर 27.5, ये 27.5 को कैसे हम बाइनरी या
ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो ऑक्टल चेंज करना ये नहीं है, लेकिन बाइनरी में चेंज करना ये तुम्हारे सिलेबस में है। एक्चुअली हमको ये डेसिमल को हर पार्ट में चेंज करना सीखना है, लेकिन सब पार्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इट्स नॉट गिवन इन द बुक, सो ज्यादा पढ़ के फायदा है नहीं, है ना। सो क्या करना है, यू टू चेंज द फ्रैक्शनल पार्ट इनटू डेसिमल, सॉरी इनटू बाइनरी। कैसे? डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी कैसे करें? सर फॉर दिस सपोज तुमको एक क्वेश्चन दिया गया है, the question is very loud and clear that 56.125 इस 56.125 को कन्वर्ट करना है बेस 10 से बेस 2 में। हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस? तो सर ये 50 ये डेसिमल के पहले वाला पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, डेसिमल के पीछे वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे। हाउ दिस 56 कैन बी कन्वर्टेड बाय डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर ही सकते थे। क्या होगा? आई विल गेट 28 रिमाइंडर 0, 2 14 रिमाइंडर 0, 2 7 रिमाइंडर 0, 2 3 रिमाइंडर 1, 2 1 रिमाइंडर 1। So I am getting this 56 as 1 1 1 0 0 0। ये 56 का पार्ट ना। अब हार्ड आ गया। डेसिमल के पहले बार हम लोग डिवाइड कर रहे थे 2 से, डेसिमल के पीछे मल्टीप्लाई करना है 2 से। मींस हमको 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मिलेगा? आई विल बी गेटिंग 0.250। सही है। तो इसके आगे का जो डेसिमल के आगे का पार्ट है वो निकाल के रख दो। हमको 0 निकल गया। डेसिमल के आगे का पार्ट निकाल के रख दिए, 0 निकाल के रख दिए। क्या बच गया? 0.250। इस 0.250 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। सर कब तक करना है? जब तक कि मेरा 0 ना आ जाए, जब तक मेरा कोई डिजिट मेरे पास बाकी नहीं, तब तक मल्टीप्लाई करते जाना। 2 से मल्टीप्लाई कितना मिल गया? 0.500। फिर से 0 निकाल के रख दिया क्योंकि 0 आया सबसे पहले। फिर 0.500 इंटू 2 मिल रहा है 1.000। 1 निकाल कर दिया, डेसिमल क्या होगा? अब क्या मिला? अब तो सिर्फ बचा नहीं सर 0.000। अब तो कुछ करना नहीं, मतलब मेरा काम खत्म। आई हैव डन माय वर्क। क्या बोले? जब तक कि ना मेरा पूरा 0 आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करते जाना। सो आई गॉट 001। सर इसको तो हम ले रहे थे फ्रॉम नीचे से ऊपर, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए लेंगे ऊपर से नीचे। उल्टा, जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। यहां डिवाइड कर रहे थे एंड आई टुक द रिमाइंडर फ्रॉम नीचे से ऊपर। यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई विल टेक फ्रॉम ऊपर से नीचे एंड दैट विल बी 001। सो देयरफॉर हम इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या मिल रहा है आपको? वी आर गेटिंग 111,000.001 बेस। आया समझ में? मीन्स आई हैव कन्वर्टेड माई फ्रैक्शनल नंबर इनटू अ बाइनरी फ्रैक्शन, है ना। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन है 13.63 टू द बेस 10। इसको कन्वर्ट करना है बेस 2। ओके, तो 13 के पार्ट को पहले सॉल्व कर लो। थर्टीन मिल गया। अब इधर आ जाओ, 0.63 into 2. What I will get? I will get 1.26. डेसिमल क्या क्या 1 साइड का रख दो, ठीक है। Now I am getting 0.26। क्या मिलेगा? 0.52। 0 हटा दो, डेसिमल क्या दो। फिर क्या मिला? ठीक है,
फिर क्या मेरे सर ये तो चलते कभी खत्म ही नहीं होगा। लास्ट में 5 रहता तो कभी ना कभी 0 कभी ना कभी एंड होता है, खत्म ही नहीं होगा। सो कहां तक जाएंगे सर? 3 स्टेप या 4 स्टेप के बाद रुक जाना है। जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा 0.63, ये कभी लास्ट में 0 0 नहीं आएगा। 5 रहता तो कभी ना कभी लास्ट में 0 आने का चांसेस था, लेकिन ये कभी नहीं आएगा। तो तुम 3-4 बार और कर सकते हो जितना, लेकिन हम जैसे हम यहीं पे छोड़ दिए, फिर एक और स्टेप मतलब कर लेते हैं। आई एम गेटिंग 0.04, फिर 0.08, फिर 0.16। तो चलते जाएगा ना, ये कब बहुत बड़ा होगा। सो आई एम सम पहला 3 ले लिए क्योंकि सब तो 0 ही था। सो व्हाट आई एम गेटिंग दिस एज ऊपर से नीचे 101। तो इन दोनों को कंबाइन करो, व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर एज 1101.101 base 2. So this is how I can convert my fractional decimals into binary. इसका उल्टा भी देखना है कि अगर तुमको बाइनरी में फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। चलो इसी को कन्वर्ट करते हैं। कैसे चेंज करें? तो सर इसको चेंज करने का था, डेसिमल के पहले का अलग से, डेसिमल के बाद का अलग से। तो डेसिमल के पहले हमको क्या मिला? आई गॉट 111,000। ठीक है, इसको क्या करना था? आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 to the power n, मींस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 1, इसको करेंगे 2 to the power 2, इसको करेंगे 2 to the power 3, इसको करेंगे 2 to the power 4 और इसको करेंगे 2 to the power 5। तो क्या मिलेगा? दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 8, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 32। ऑन एडिंग आई एम गेटिंग दिस एज 56। हाँ सर, तो ये डेसिमल के पहला 56 था, ये हमको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या करें? जस्ट इसको देखो, वी हैड डिवाइडेड द पोर्शन बिफोर द डेसिमल एंड वी हैव मल्टीप्लाइड द पोर्शन आफ्टर द डेसिमल। यहां क्या कर रहे हैं? वी आर मल्टीप्लाइंग द पोर्शन बिफोर द डेसिमल, तो वी हैव टू डिवाइड द पोर्शन आफ्टर द डेसिमल। मींस ये जो 001 हमको मिला है इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे सर? 2 to the power n से। खाली अंतर क्या है? यहां 2 to the power 1 n शुरू होता है 2 to the power 0 से, वहां 2 to the power n शुरू होगा 2 to the power 1 से। मींस दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 to the power 1, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 to the power 3। करेक्ट? तो क्या मिला? यहां मिला 0/2, यहां मिला 0/4, यहां मिला 1/8। ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 0.125। तो इफ आई एड ऑल दिस 3, व्हाट आई एम गेटिंग द सेम 0.125। सो देयरफॉर डेसिमल के आगे मिला 56, डेसिमल के बाद मिला 0.125, देयरफॉर आई एम गेटिंग 56.125 एज माय डेसिमल नंबर। यस सर, आ गया फिर से भाई घूम फिर। माय आंसर इज करेक्ट। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, चलो। सही है। सो व्हाट वाज द डेसिमल के आगे क्या था? डेसिमल के आगे था 1101, 1101। ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 to the power 0। ये होगा 2 to the power 1, ये होगा 2 to the power 2 और ये होगा 2 to the power 3। So here I will be getting 1, here I will be getting 0, here I will be getting 4, here I will be getting 8। तो हमको मिल गया 13। ठीक है सर, डेसिमल के आगे 13 मैच कर गया। डेसिमल के पीछे क्या था? डेसिमल के पीछे था सर 101, 101। इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? ये 2 to the power 1 से, ये 2 to the power 2 से, ये 2 to the power 3 से एंड सो ऑन। इट विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। करेक्ट? क्या मिलेगा? I will get here 1/2, I will get here 0/4, I will get here 1/8। तो 1/2 क्या था? 1/2 होता है 0.5, ये होता है 0, ये होता है 0.125, 0.125। सो अगर इन तीनों को ऐड करें, व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 0.625। ठीक है,
तो डेसिमल के आगे मिला 13, डेसिमल के बाद मिला 0.625. If I add these two, what I will get? I will get 13.625, which is almost equals to 13.63. आ गया ना? So this is the conversion of the fractional binary to fractional decimal, and this was the conversion of fractional decimal to fractional binary. इस तरह हम फ्रैक्शनल डेसिमल को फ्रैक्शनल ऑक्टल में भी चेंज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड. ये तुमको क्या करना है, यहाँ पे जो डिवाइड करना 8 था, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 से 8 टू द पावर से मल्टीप्लाई करना, वहाँ 8 टू द पावर से डिवाइड करेंगे. द सेम प्रोसेस, लेकिन वो नहीं है एनी हाउ. सो दिस इज द एंड ऑफ ऑल योर कन्वर्शन टाइप्स. Now in the next class we will study how to add or subtract these binary and octal numbers. Thank you.